Hello, students. Today we'll begin with the first chapter of your supplementary book, that is The Lost Child. This chapter is basically about a child who goes to a fair with his parents. He was a young child and he was so happy and excited, and he was going to the fair for the first time. And so he was so much excited, and when he enters the fair, he sees sweets, toys, every single thing displayed there. But his parents denied getting him anything of those things which he demanded. His parents did not buy anything for him, and when he was refused for everything, he was a little upset. But later on, when all these things were offered to him, he did not accept those. Now, why does this happen? We'll be seeing in the story. I'll be summarizing the story today and we'll be continuing with the chapter in the next session. The Lost Child is about a spring festival, a fair, हिंदी में हम जिसको मेला कहते हैं. So the fair was arranged during the spring festival, and here this child, he came along with his parents, and everyone was so happy. He looked all around, everything was so joyous, so colorful. He saw many different things which he has never seen before in his life. And before entering the fair, he saw many toy shops and he wanted to have each toy from them. He was not able to keep his eyes straight on the path. He continuously kept on lagging behind from where his parents were walking. That was just because of the excitement and curiosity of the things that he was looking on his way. Later on, when he was just lagging behind his mother and his father, both of them, they kept on telling him to keep pace with them, to walk along with them. बट बिकॉज इन सारी चीज़ों से उसका ध्यान इतना भटक गया था कि वो साथ में चल भी नहीं पा रहा था. वो बहुत पीछे छूट जा रहा था बार बार. फ्रॉम द पिक्चर गिवन हियर इन द टेक्स्ट बुक, we can easily note down all the people are how they are happy, they are merry making, and they are selling n number of different things. A few are visitors to this fair and a few are sellers or vendors over here, and the child, he is so excited looking at each thing, and the parents are trying to move further. Here the child, as I said, he was lagging behind because he was fascinated by n number of things. His mother again and again kept on telling him to keep pace with them, but he did not obey them. He was looking at different things, but at the end his father, he got so angry. Here we can see the line given to you. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. मतलब कि यूजुअली हमें भी पता है घर में ऐसा ही होता है कि मम्मी से बहुत प्यार मिलता है और पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं. तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई कि जब वो उसकी मदर बार बार उसे बोल रही थी कि बेटा साथ चलो, और वो नहीं साथ चल रहा था, तो फाइनली फादर ने एक लुक दे दिया, और वो लुक हमेशा की तरह एक डरावना लुक था, उसको घबराने वाला लुक था. एंड देन अगेन द सेम थिंग, मदर शी ट्राइड टू कवर अप, उसने अपने बच्चे को समझा लिया. Now the important part in this chapter is what all things the boy saw on his way in the fair. So बहुत सारी चीज़ें हैं. स्टार्टिंग में एज आई सेड, उसको टॉय शॉप दिखता है, अलग अलग टॉयज़ दिखते हैं. फिर उसको मस्टर्ड फील्ड दिखते हैं. मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों के खेत दिखते हैं, जो फ्लावर्स आए हुए थे, तो बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन और येलोइश कलर के वास्ट स्ट्रेचेस दिख रहे थे. देन आफ्टर उसको ड्रैगन फ्लाइज दिखती है. उसके बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसको स्नेक चार्मर से लेके फ्लावर सेलर से लेके बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले दिखते हैं. आई एम नॉट गोइंग थ्रू हियर इन डिटेल विद द टेक्स्ट, बट विल बी गोइंग थ्रू दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन. जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये दिख सकता है सेकेंड पैराग्राफ में, स्वीट मीट सेलर. स्वीट मीट सेलर का मतलब होता है पर्सन हु सेल्स स्वीट्स. तो उसको वहाँ पे ये भी दिखता है कि बहुत सारे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें बिक रही थी और उसे ये भी खाना था. बीइंग अ किड, ही वॉज सो फैसिनेटेड एंड सो एक्साइटेड टू हैव स्वीट्स एज वेल. और उसमें भी उसको बर्फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, पर उसके फादर ने उसको कुछ भी नहीं दिलाया. उसके बाद में उसको फ्लावर सेलर दिखता है जो गुलमोहर की माला बेच रहा था. गुलमोहर आर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जो उसकी माला बेच रहा था. गार्लैंड का मतलब होता है माला. उसके बाद में उसे एक बंदा दिखता है हु वाज सेलिंग बलून्स, एंड दीज वर डिफरेंट कलर्ड बलून्स, जो उसको बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, पर उसके फादर को पूछने की इसे हिम्मत ही नहीं होती है, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन ही सॉ दीज थिंग्स तो उसे पता था कि उसके फादर का आंसर क्या होगा। जैसे अभी अगर वो बलून्स की डिमांड करता, ही न्यू दैट हिज फादर वुड से कि यू आर नॉट दैट यंग, यू आर नॉट अ स्मॉल किड कि तुम बलून से खेलोगे। सो ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर वन। उससे आगे जाके उसको मिलता है एक स्नेक चार्मर। व्हेन ही सीज दिस स्नेक चार्मर, मतलब कि एक सपेरा जो स्नेक डांस करवाते हैं, हमने कितनी बार रोड्स पे देखा होता है ये। तो उसको जब स्नेक चार्मर दिखता था, सो एक्साइटेड टू सी दिस, एंड उसने वहाँ पे जाने का सोचा, दूर से देखा, फिर उसने सोचा कि मैं नज़दीक जाके देखता हूँ, बट देन ही डिसाइडेड नॉट टू गो, क्योंकि वो अपने फादर से पूछता अगर, तो उसके फादर बोलते कि ये सब हमारे अच्छे घर के लोगों के लायक देखने की चीज़ें नहीं हैं, एंड सो ही डिड नॉट गो देयर। फाइनली इसको आगे एक राउंड अबाउट दिखता है। हम लोगों को भी पता है, हम भी जब मेले में जाते हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग अ फ्यू यू कैन से फेवरेट राइड्स, जिसमें से एक इसका फेवरेट था, दैट वाज अ राउंड अबाउट फुल स्विंग। और ये जब देखता है वो राउंड अबाउट को, तो वो नहीं रह पाता, एंड ही वांटेड टू गो इनटू दैट। तो ये एट लास्ट अपने फादर को, मदर को पूछता है कि इफ़ ही कुड गो इनटू दी राउंड अबाउट, बट जब वो पलट के देखता है तो पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। हियर इन दिस पैराग्राफ वी कैन ईजिली सी दिस, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। यहाँ से नाउ द बॉय ही वॉज सो स्केर्ड कि उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे, बिकॉज उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। अभी तक तो ही वॉज जस्ट वॉन्टिंग थिंग्स, बट नाउ हिज डिमांड सडनली चेंज, नाउ ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स। ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, हिज थ्रोट गॉट ड्राई एंड ही वॉज गेटिंग breathless because he was lost. He tried to find his parents but he could not. और उसमें एक आदमी उसको आके हेल्प करता है। दिस पर्सन ही ट्राइज टू हेल्प हिम इन एवरी वे। उससे बात करता है, उसको पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, बट ही वॉज सो अपसेट एंड सो स्केर्ड दैट ही डिड नॉट स्टॉप क्राइंग एंड ही वॉज अनेबल टू आंसर। फाइनली वो आदमी जो इसकी हेल्प के लिए आया था, ही थॉट कि अगर बच्चा है, इसे अगर मैं कुछ चीज़ों को ख़रीद के दे दूंगा तो ये शायद चुप हो जाएगा, रोना बंद करेगा, एंड ही विल बी टेलिंग मी वेयर हिज पेरेंट्स आर एंड वॉट ऑल हैज़ हैपन टू दिम। पर जब वो आदमी इसको पूछता है कि स्नेक चार्मर के पास जाना है, बलून्स दिला दूँ, स्वीट्स दिला दूँ, टॉयज़ दिला दूँ, राउंड अबाउट में बिठा दूँ, तो फॉर एवरी सिंगल थिंग ही डिनाइड। जो सारी चीज़ें अभी तक उसे चाहिए थी, अब उसको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। नाउ वॉट ही वॉन्टेड वॉज only and only his parents. So basically this is the chapter. This is the end of this story, is up to reader's interpretation. There's no such